Hello everyone from the beautiful town of McLeodganj. Maybe we could pretend. I don't wanna let go of your love. I don't wanna let go of your touch. 'Cause my sun is rising and setting with you. I'll never let go of your love. McLeodganj. It is a nature lover's haven, and we are heading out to uncover its hidden natural treasures and experience the rich Tibetan culture that thrives in this town. And with that excitement, we headed towards our first location. But before we could do that, McLeodganj had welcomed us with some good old traffic. पर उसी ट्रैफिक के वजह से हम इस राजस्थानी स्ट्रीट आर्टिस्ट और उनकी एक क्यूट सी बच्ची को मिल सके और उनके मधुर संगीत का आनंद उठा पाए. With that, we finally reached the first stop of the day, Namgyal Monastery, aka Dalai Lama's temple. As soon as you enter the temple premises, you will find yourself mesmerized by the beauty of the Tibetan culture. And this place is also home to over 200 monks. So be assured you'll get to see a lot of them, and you'll also get transported to an environment filled with peace and joy. Guys, अभी मैं monastery के अंदर हूँ. I mean, it's absolutely gorgeous. Tibetan culture फूट के भरा है. और एक चीज़, look at the background. मैं थोड़ा अभी just amazing. एक चीज़ मैंने जो नोटिस करा है कि धर्मशाला में हर जगह पे you find really good landscape, वो तो है. और Tibetan culture या Buddhist culture में ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं प्रेयर व्हील्स. हमारे हिंदू धर्म में जैसे हमारे मंत्र होते हैं, वैसे ही इन प्रेयर व्हील्स के ऊपर भी बुद्धिस्ट मंत्र लिखे हुए होते हैं. एंड द स्पिनिंग ऑफ दीज व्हील्स इज कंसिडर्ड सिमिलर टू चैंटिंग दीज मंत्रास, एंड इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड टू अक्यूमुलेट विजडम एंड प्योरीफाई नेगेटिविटी. मैं टेम्पल को अभी एक्सप्लोर कर ही रहा था कि इतने में आई गॉट टू विटनेस अ बुद्धिस्ट प्रेयर, where I felt the vibrations flowing through my body from the mesmerizing chants recited by the monks. Soon after, I was once again in luck to have got to witness a garden full of monks debating, and it was quite an amusing sight to look at. मोनेस्ट्री से हम लोग निकल चुके हैं, एज यू कैन सी ऑफ कोर्स. अभी हम प्लान कर रहे हैं स्काईवे पे जाने का. मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ. आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस कैन सी. तो पूरा केबल कार का वे है और उसका एंट्रेंस यहाँ पे है. तो वहाँ जाने का प्लान है, पर उससे पहले वी थॉट ऑफ गेटिंग अ क्विक बाइट बिफोर गोइंग ऑन द रोप वे, क्योंकि मोनेस्ट्री में हम लोग आराम से 2 घंटे थे वहाँ पे, एंड इट वाज अमेजिंग. सो या, एंड मैं जहाँ पे अभी हूँ और जो रोप वे भी है वो मैक्लोडगंज के मॉल रोड पे है, विच इज़ लाइक द मेन सेंटर ऑफ मैक्लोडगंज. तो अभी मैं आपको सीधा रोपवे के अंदर से व्यू दिखाता हूँ. We bought our tickets, which was around 650 rupees a person for a 2-way ticket. This skyway connects McLeodganj to Dharamshala and is a must-try activity if you're visiting McLeodganj. If you're with your family, just like I was, in this case, they'll definitely love it. The ride goes on for around 10 to 15 minutes one way and offers you a 360-degree view, with breathtaking sights of ice-capped Dauladhar mountain ranges on one side and a bird's-eye view to this beautiful town on the other. And as you gaze far away into the mountains, you can watch the valley open up close to the horizon. As you complete your ride, you'll find a cute cafe right next to the exit point overlooking the skyway. I would definitely recommend you guys to go and chill over there. So guys, अभी हम आ चुके हैं लाइक बक्सुकनाथ टेम्पल के यहाँ. टेम्पल दिखा देते हैं. यहाँ पे टेम्पल है. दिस इज द रूट. ये पूरा टेम्पल का ही प्रेमिसेस है. और एक वाटरफॉल भी है यहाँ पे. लाइक इट्स लाइक 15 मिनट्स फ्रॉम हियर. 15 मिनट्स हो. सो हाँ, शॉपकीपर से हम लोगों ने पूछा 2-3 लोगों से. वो लोग ने बोला कि 10-15 मिनट का रास्ता है. तो देखते हैं, होपफुली वी कैन मेक इट, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 6:40 और 7 o'clock को सनसेट हो जाता है यहाँ पे. थोड़ा लेट हो गया हम लोग, तो अभी भाग के देखते हैं लाइक इफ वी कैन मेक इट इन टाइम. एंड वी आर होपिंग टू मेक इट, क्योंकि अच्छा व्यू होगा वहाँ पे. सो लेट्स सी. So with 30 minutes until sundown and हमारा टाइम से वाटरफॉल तक पहुंचना लगभग असंभव लग रहा था.
बट मुझे ये जगह मिस नहीं करना था, तो हम बस उम्मीद लेके चल पड़े। गाइस हम थोड़े आगे आए हैं अभी। आई जस्ट शो यू, ये पूरा ऊपर तक ट्रैक है। मैं आपको अभी आगे जाके दिखाऊंगा, बट इट्स लाइक अ डिसेंट ट्रैक। और यहाँ से मुझे वाटरफॉल का नज़ारा भी दिख रहा है। वहाँ पे वाटरफॉल है, व्यू तो एकदम मस्त है पूरे वैली का। तो अभी मैं आगे जाके पास से दिखाता हूँ आप लोगों को। थोड़ी दूर जाते ही आप रियलाइज़ करोगे हाउ ब्यूटिफुल दिस प्लेस इज, विथ लश ग्रीन माउंटेन्स ऑल अराउंड and the sound of the river flowing beside you during the entire trek. Guys, दिखता नहीं है बट चढ़ाई स्टीप है। मेरा भाई भी हाँफ रहा है अभी। हाँ, फिटनेस क्रेजी फिटनेस है हमारे जनरेशन सब लोगों में, दिख रहा है इसमें। इट्स अ फन ट्रैक, मस्त एकदम पहाड़ों के बीच में से इधर व्यू, totally breathtaking. Although we were a bit tired, but the adrenaline kept us going. तो कैसे ना कैसे हाँफते हुए 15 मिनट के ट्रैक के बाद we made it to the top. The best part is when at the end of the trek, the waterfall completely opens up to you, and that view put a smile on my face which lasted the whole night. This place right here was hands down my favorite part of this trip. After chilling at the waterfall, you can also visit Shiva Cafe, which is a 15-minute trek from the waterfall. So guys, हम finally पहुंच चुके हैं after like 10 minutes of trek. थोड़ा मुश्किल था but it's fine. I'll show you guys the waterfall. It's absolutely pretty. Bro, how do you feel? It's freaking amazing, bro. This place, the entire vibe is set. Yeah. People are chilling there in that small cafe set there. हाँ, मैं दिखाता हूँ। इधर एक मस्त चिलिंग का स्पॉट है और there are people meditating over there. It's like a total vibe over here and it's amazing. So अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पे, there is tons to do. एक तो waterfall इतना अच्छा है, you guys should definitely visit it. Then you've got these shops. You can see this. There is like a whole market over here. और फिर यहाँ पे टेम्पल भी है। तो गाइज़ मैं एक बात बताना भूल गया, स्पेशली हमारे जनरेशन के लिए, कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, डेफिनेटली विज़िट द शिव टेम्पल, भोलेनाथ का आशीर्वाद लो और फिर ही वाटरफॉल के पास जाना। क्योंकि हमारे बहुत ज्ञानी जनरेशन है जो वो बोलेंगे कि टेंपल क्या ज़रूरत, सीधा वाटरफॉल पे जाएंगे। बट डोंट मिस आउट दिस 10,000 ईयर ओल्ड टेंपल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डे 2 मैक्लोडगंज में एंड फर्स्ट प्लेस ऑफ द डे इज़ कॉल्ड द डल लेक। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे पीछे है डल लेक। इट्स लाइक एब्सोल्युटली प्रिटी, बट द ओनली थिंग इज़ यहाँ पे लेक बहुत कम है क्योंकि आई गेस समर सीज़न है तो ज़्यादा दिख नहीं रहा, पानी है भी नहीं। बट द व्यू इज़ प्रिटी नॉनदलेस, इट्स लाइक एब्सोल्युटली गॉर्जियस। सो या दिस इज़ द फर्स्ट स्पॉट एंड बहुत प्लेजेंट है। लाइक कल रात बहुत बारिश हो रहा था तो वी वर लाइक अ बिट स्कैर्ड कि हो पाएगा कि नहीं, बिकॉज बारिश में कहीं घूम नहीं सकते और ऊपर से फैमिली के साथ है तो यू नो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। बट अभी धूप आ रहा है एंड इधर स्पेशली क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, एकदम मुंह पे ऐसे ठंडा सा हवा चल रहा है और धूप भी लग रहा है, बहुत मज़ा आता है। सो इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू विजिट एनी हिल स्टेशन अप नॉर्थ, यू शुड डेफिनेटली डू इट। सो गाइज ये लेक का दूसरी साइड है, एकदम मस्त सा ऐसे वॉकिंग का पाथ है। आप लोग अपने फैमिली के साथ आ सकते हो और लिटरली चिल कर सकते हो। इट्स रियली प्रिटी। इस तरफ पूरा पाइन का फॉरेस्ट है, सो यू कैन चिला। आपको दिखाता हूँ एक सेकंड में। या तो गाइज डल लेक से निकलते ही थोड़ा ऊपर आने के बाद, लाइक इट्स लाइक अ कपल ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम डल लेक, ऊपर आने के बाद आपको नड्डी व्यू पॉइंट मिलेगा। और मैं आपको दिखा दूँ,
व्यू है क्या। ये तो हम लोग एक छोटे से स्ट्रीट साइड फुट कॉर्नर में बैठे हैं। ये हमारा व्यू है इधर से, पूरे आइस कैप्ड माउंटेन्स है। एंड आइस कैप्ड माउंटेन्स हो और मैगी नहीं खाया तो क्या ही किया। सो आई एंजॉय माई मैगी एंड आपको दूसरे साइड से मैं ढंग से व्यू दिखाता हूँ। सो गाइज़ अभी मैं आ जाऊँगा प्रॉपर नड्डी व्यू पॉइंट पे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक बोर्ड भी है। सो ये बोर्ड है और मैं अभी जो कैफ़े में बैठ के व्यू देख रहा था, यहाँ से और क्लियर है व्यू। ये है व्यू पूरा धौलाधर माउंटेन रेंज से पूरा यहाँ पे, और ये पूरा आइसकेप माउंटेन्स उधर से लेके यहाँ तक है। और उस तरफ ट्रायन ट्रैक भी होता है वहाँ पे, इट इज़ अराउंड ओवर देयर। वहाँ पे ट्रायन ट्रैक भी होता है। सो उसका बेस कैंप भी आपको दिख जाएगा टेलीस्कोप के थ्रू। तो यहाँ पे आके आप लोग थोड़ा देर चिल कर सकते हो और यहाँ पे छोटे मोटे कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पे उधर बैठ के ये व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। After looking at those beautiful ice-capped mountains, we then headed towards one of the highest sports stadiums in the world, which has got one of the best views. But unfortunately, there was some renovation going on, so we couldn't really enter. So do check if you're planning to go. Couple of minutes away from the stadium is where a war memorial is located, where you can pay respects to all the fallen soldiers who have laid their life for this country so that you and I can breathe freely. So do not miss this place. अभी हम आ चुके हैं सेंट जॉन्स इन द विल्डरनेस चर्च। ये चर्च के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये मस्त एकदम से अपने पहाड़ के बीच में फुल ट्रीज से घिरा हुआ है, तो दिखने में एकदम मस्त है, एकदम पिक्चरिस्क, जैसा मेरा भाई बोलता है वैसा प्लेस है। सो यू शुड डेफिनेटली कम एंड विजिट इट, क्योंकि इधर बहुत दूर नहीं है मैक्लोडगंज से, प्रॉब्ली 5-10 मिनट लगेगा गाड़ी पे। सो आई वॉक अराउंड एंड अगर और कुछ इंटरेस्टिंग है दिखाने लायक तो मैं आपको बताऊँगा। तो गाइज़ वो चर्च के बाद बहुत अच्छा था चर्च, यू नो यू कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट लाइक एनी अदर प्लेस इन मैक्लोडगंज। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड करा, क्योंकि आज लास्ट डे हम लोगों का, तो वी केम टू द मॉल रोड। और गेस व्हाट, दिस प्लेस इज़ अमेजिंग एज वेल। और यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है और साइड में आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ और फूड स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। उसमें से एक प्लेस में हम लोग आए हैं, उसका नाम है चाय सुट्टा बार। एंड गेस व्हाट, आई बॉट माई सेल्फ अ कप ऑफ रेड वाइन कॉफ़ी। मुझे पता है वियर्ड है और यूनिक भी है एट द सेम टाइम। सो वी केम आउट टू ट्राई। ऐसे रैंडमली रुक गए थे हम लोग, हमारा पूरा फैमिली चला गया है, सिर्फ मैं और मेरा भाई यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए रुक गए। तो विल सी। He also bought something. This place is like super affordable and it is very tasty. So if your guys are here, like do check this place out. The Mall Road, hands down the busiest street in McLeodganj. Here you'll get to see monks casually walking around and chilling out in some cafes. And you also have shops selling Tibetan merchandise and other artifacts that you can take back home as a memory of this place. This place is also filled with shops selling all types of clothing, winter wear and traditional Himachali outfits if you want to try out something different. If you get tired from shopping, don't worry. This place is storming with cafes with the most amazing views. But if you're on a budget or a fan of street food, don't worry. There are many small restaurants and street side stalls offering some lip-smacking food as well. There is also a complete lane dedicated to shops and small stalls selling precious and semi-precious stone jewelry at very reasonable prices. So don't forget to get your hands on some nice jewelry while you're there, just like I did. This was supposed to be the end of the vlog, but there is one last place that I want to show you guys. So guys, आपको लग रहा होगा कि सडनली ड्रेस चेंज करके क्या आ गया। एक्चुअली नेक्स्ट डे है, मैं बीर जा रहा हूँ, बट उससे पहले ऑन द वे धर्मशाला से अराउंड 10-15 किलोमीटर्स के आसपास एक मोनेस्ट्री है, इसका नाम है गाइटो मोनेस्ट्री एंड इट इज़ एब्सोल्युटली प्रिटी। और मुझे लगा था कि ये मैक्लोडगंज के व्लॉग में ही जाना चाहिए, क्योंकि बहुत पास है मैक्लोडगंज से। अगर आप बीर जा रहे हो तो ऑफकोर्स ऑन द वे मेरी तरह देख सकते हो, बट जस्ट लुक एट दिस, इट्स एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। और पीछे आपको वहाँ पे पूरे आइस कैप्ड माउंटेन्स दिखेंगे। गाइस डोंट मिस दिस, ऐसे बेस्ट प्लेस है। आप बाकी चीज़ें थोड़े मिस भी कर लोगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये मोनेस्ट्री
इट्स वेरी नाइस और आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए. As you enter through the gates to this monastery, you will feel transported to a different country. It doesn't feel like India anymore. With the beautiful temple in front and magnificent ice-capped mountains as the backdrop, I have no words for this place. But to say the least, it was quite mystical. The moment you step into the temple, the air automatically feels very light and a lot calmer. As you look around, there's a big Buddha statue accompanied with other gods from the Buddhist culture. You'll get to experience beautiful Tibetan artistry and their way of praying to gods. The vibe is so positive that you'll feel at peace. और वहाँ के हवा में ऐसा कुछ तो है जिससे आप अपने टेंशन्स भूल जाओगे. बहुत अमेजिंग सा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे. यू नो इट्स वेरी काम इन जैसे बुद्धिस्ट कल्चर होता है इन जनरल. इट्स वेरी नाइस. इसे बहुत काम और जेंटल सा वाइब है यहाँ पे. और अभी बज रहे हैं आई गेस 12:30 या कुछ चल रहा है. 12 o'clock आई गेस. सो अगर आप लोगों को भी इतने सारे मॉन्क्स एक साथ देखना है तो आई गेस 12 o'clock को अगर आप आओगे you will get to see a lot of monks. That is it for this video, guys. Comment down below your favorite part of the vlog, and if you guys have enjoyed it, do not forget to like, share and subscribe to my channel as it helps me a lot to grow. In the next video, I'll be facing one of my biggest fears in beer, so stay tuned for that. Until then, adios amigos.